یہ بات میں تم سے نہیں کہہ سکا دوست، لیکن یہ بہت بہتر رہے گا کہ تم اگر چاہو تو سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں جاگتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا اور ایک صاف ستھری جگہ دیکھ کر لیٹ گیا۔ طے یہ ہوا کہ آدھی رات کو ایلٹ مجھے جگا دے گا اور پھر خود سو جائے گا۔ میں کھلی جگہ میں تھا اور دن کی خوفناک گرمی کے بعد اب خنکی پھیل گئی تھی۔ چاند کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب پلکیں جڑ گئیں۔ حالانکہ یہ خلاف مسلک تھا، ایلٹ پر مجھے شروع ہی سے بھروسہ نہیں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ سونے کی کوشش نہیں کروں گا، چاہے رات آنکھوں ہی میں گزر جائے۔ ایلٹ سے محتاط رہنا ضروری تھا، لیکن نیند کم وقت نہ جانے کب حملہ آور ہوئی کہ میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ اس خنکی کا بھی احساس نہ رہا جو مجھے بدن سکوڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔ گٹھری بنا ہوا نہ جانے کب تک پڑا رہا، شاید ساری رات اسی طرح گزر جاتی، لیکن وہ گولیاں چلنے کی آوازیں تھیں جنہوں نے مجھے نیند سے جگا دیا تھا۔ میں نیم خوابیدہ ذہن کے ساتھ ان آوازوں کو سنتا رہا جو آہستہ آہستہ میری نگاہوں میں واضح ہو گیا تھا۔ چاند آدھا سفر طے کر چکا تھا اور فضا میں خاصی ٹھنڈک تھی۔ پھر جو ہی میرا ذہن جاگا، میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ میں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا، پتہ نہیں کس سمت سے یہ ہنگامہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے سمت کا اندازہ بھی ہو گیا۔ میں نے سرسراتی آواز میں ایلٹ کو پکارا، لیکن جواب نہیں ملا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن پر جمی ہوئی دھند چھٹ گئی اور دوسرے ہی لمحے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے نیچے آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے ہراساں نگاہوں سے لینڈ روور کو دیکھا اور اسے اپنی جگہ موجود پا کر سکون کی گہری سانس لی۔ اس کے بعد میں نے اطراف میں گھوم پھر کر ایلٹ کو پکارا، لیکن ایلٹ موجود نہیں تھا۔ دفعتاً ہی مجھے کچھ خیال آیا۔ میں نے اپنے لباس کو چیک کیا تو پستول میرے لباس میں موجود نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ اندازہ لگانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی کہ ایلٹ اب یہاں موجود نہیں۔ لینڈ روور پتہ نہیں کیوں وہ میرے لیے چھوڑ گیا تھا۔ تعجب کی بات تھی، میں لینڈ روور میں داخل ہو گیا اور مدم سی روشنی کر کے اس کے اندر کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں آنے کے بعد اس خیال کو مزید تقویت پہنچ گئی تھی کہ ایلٹ جانے بوجھے منصوبے کے تحت فرار ہوا ہے۔ لینڈ روور سے اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور پانی وغیرہ نکال لیا تھا، لیکن صرف اتنا کہ اس کے کام آ جائے۔ اگر وہ چاہتا تو حوث میں آ کر تمام چیزیں بھی لے جا سکتا تھا، لیکن آدمی شاید کچھ معقول ہی تھا، صرف اپنا حصہ لے گیا تھا۔ شکر ہے اس نے لینڈ روور میں کچھ اور تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ واقعی مجھے نقصان ہو جاتا۔ وہ کون تھا اور اس کے دشمن کون تھے، یہ بات ابھی تک میرے ذہن میں واضح نہیں تھی۔ اتنا جانتا تھا کہ جو کہانی اس نے سنائی تھی وہ حقیقی نہیں تھی۔ کیا اس کا تعلق لائن آف کروزل کے کسی سلسلے سے ہے؟ میں نے دل میں سوچا، نہ جانے کیوں ایلٹ کی پراسرار شخصیت سے یہی احساس ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق میرے مسئلے سے ضرور ہے، لیکن پھر اس کے دشمن یقیناً یہ گولیاں ہواؤں میں نہیں چلائی جا رہی ہوں گی، اور دن میں سفر کرتے ہوئے میں نے بھی کسی متعاقب گاڑی کے شیشے چمکتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس کے بعد میں نے لینڈ روور کی سیٹ ہٹا کر اس کے نیچے سے ایک جدید ساخت کی رائفل نکال لی جو کافی دور تک مار کر سکتی تھی۔ رائفل کے کارتوس کا ایک پیکٹ بھی میں نے نکال کر کھولا اور کارتوس جیبوں میں ٹھونس لیے۔ غیر مسلح رہنا کسی بھی طور مناسب نہیں تھا۔ فائرنگ کرنے والے ادھر بھی متوجہ ہو سکتے تھے۔ پھر گولیوں کا شور آہستہ آہستہ معدوم ہو گیا اور اس کے بعد میں نے کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ پھر 4 سرخ روشنیاں بھی دیکھیں جو مخالف سمت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ گویا وہ 2 گاڑیاں تھیں جو دن میں ہمارا تعاقب کر رہی تھیں، اور شاید اب انہوں نے ایلٹ کا پتہ لگا لیا تھا۔ بے وقوف آدمی، میں نے دل میں کہا، اگر میرے ساتھ ہی رہتا تو کیا برا تھا۔ میں نے ذہن کو جھٹک دیا اور خود بھی وہاں سے روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ لینڈ روور سٹارٹ کر کے میں آگے بڑھ گیا۔ سارے ریگستان میں چاندنی بکھری ہوئی تھی اور سرد ہوا سے جسم میں کپ کپی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہونے میں ابھی دیر تھی، راستہ سراب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پہاڑیاں اب بھی اتنے ہی فاصلے پر نظر آ رہی تھی جو بظاہر یوں محسوس ہوتی تھی جیسے تھوڑی دور ہو۔ پھر اچانک پتھریلا راستہ شروع ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لینڈ روور کو روکا اور اطراف میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ میں اس جگہ سے کافی دور نکل آیا تھا جہاں ہنگامہ ہوا تھا۔ ذہن کے کسی گوشے میں ایلٹ سے متعلق کوئی کھٹک سی تھی۔ وہ کم از کم وہ نہیں تھا جو خود کو ظاہر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں وہیں رکا۔ اس وقت سردی خاصی ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ سورج نکلتے ہی ایک بار پھر یہ پہاڑیاں جہنم زار بن جائیں گی، لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ دن میں سفر کے لیے وہ پہاڑی سلسلہ زیادہ موزوں رہے گا، کم از کم صاحبان تو مل جائیں گے۔ چنانچہ میں نے لینڈ روور پھر آگے بڑھا دی۔ صبح ہونے سے کچھ ہی دیر قبل اس پہاڑی سلسلے کے قریب میں پہنچ گیا جس کے کنگورے اتنے بلند اور سپاٹ تھے کہ بظاہر وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ بڑی بڑی اور چوڑی چٹانیں سامنے نکلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک مناسب جگہ منتخب کر کے لینڈ روور ایک چٹان کے سائے میں روک دی۔
सुबह की रोशनी फैलती जा रही थी, इतराफ का माहौल वादे होता जा रहा था। मेरे एहन सामने एक पतली सी पगडंडी बुलंदी की तरफ चली गई थी। उसकी दूसरी जानिब न जाने क्या था। थोड़ी देर तक मैं कुर्बो जवार का जायजा लेता रहा, फिर एक ठंडी सांस लेकर लैंड रोवर में आ गया। एल्ड का यही एहसान क्या कम था कि वो मेरे लिए खाने पीने की चीजें छोड़ गया था। नाश्ता करते हुए मैं उसके बारे में सोचता रहा। फिर मैंने कॉफी का थर्मास देखा, वो खाली हो गया था। केरोसिन का चूल्हा निकालकर मैंने जलाया और कॉफी के लिए पानी चढ़ा दिया। कॉफी का डिब्बा खुश क्रीम और शक्कर के क्यूब निकालकर कॉफी तैयार की। सुबह की खुशगवार खनकी में कॉफी की सूंधी बू फैल गई। एक प्याली कॉफी अपने लिए निकालकर मैंने बकिया थर्मास में अंडेल दी और फिर अपना कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कप मेरे हाथ में नहीं आ सका। क्योंकि गर्दन घुमाई तो 2 पाँव नजर आए जिनमें फुल बूट थे। मैं उछल पड़ा और फिर मैंने उसे देख लिया। वो एक दराज कामत और गैर मामूली खूबसूरत लड़की थी। चेहरा दमकता हुआ, बड़ा बड़ा जिस्म, सेहतमंद और आंखें बेहद चमकदार थी। लेकिन उसके हाथ में दबे हुए पिस्टल का रुख मेरी ही तरफ था। दूसरे हाथ में कॉफी का वो कप दबा हुआ था जो मैंने अपने लिए तैयार किया था। कुछ खाने को है? उसकी दिलनशी आवाज उभरी और मेरे होंठ भींच गए। मुझे हैरत थी कि मैंने उसके कदमों की हल्की सी चाप भी नहीं सुनी थी। लानत है तुम पर, मैंने दांत पीसते हुए कहा। तमाम भूखे नंगे ही मुझे ढूंढते फिर रहे हैं मुझे खाने के लिए। वो दोबारा गर्राई। कितने दिन से भूखी हो? सुना नहीं तुमने? मुझे खाने के लिए दो, वरना मैं इस पिस्टल की तमाम गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगी। ठीक है, तुम अभी अपना हिस्सा वसूल कर लो। मैंने चंद सैंडविच उसकी तरफ बढ़ा दिए। पहले उसने कॉफी का कप नीचे रखा, फिर सैंडविच लेने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर एक मुनासिब जगह बैठ गई। इसी दौरान मैंने एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी तरफ से गाफिल नहीं पाया था। उसके खाने के अंदाज में बड़ी वहशत थी। मैं उसका जायजा ले रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और लिबास पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। पेट के पास लिबास खून से सुर्ख हो रहा था, लेकिन लड़की के चेहरे पर किसी तरह की तकलीफ के आसार नहीं नजर आ रहे थे। सैंडविच उसने आन की आन में खत्म कर लिए और फिर वो कॉफी पीने लगी। जब उसका कप खाली हो गया तो मैंने कहा, और कॉफी दूं? वो चौंक पड़ी, फिर बोली, दे सकते हो, लाओ कप दो। मैंने कहा और उसने कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने थर्मास से और काफी अंडेल दी, फिर थर्मास के कप में अपने लिए काफी डालने लगा। तुम्हारा बेहद शुक्रिया, उसने दूसरा कप खाली करने के बाद कहा। तुम जख्मी हो? मैंने उसकी खुली हुई जैकेट की तरफ इशारा किया। हाँ, वो आहिस्ता से बोली। जैकेट उतार दो। मैंने कहा, बको मत। वो फिर घराने लगी और मुझे हंसी आ गई। ओके, मैं तुम्हारी मजीद क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने कहा। यहाँ क्या कर रहे हो? जोक मार रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। इसी जगह जोक मारते रहोगे या यहाँ से आगे भी बढ़ने का ख्याल है? मतलब बताओ। कुछ खतरनाक लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, तुम भी उनके चक्कर में आ जाओगे, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से निकल चलो। मुझे भी अपने साथ ले लो, थोड़ा फासला तय करने के बाद उतर जाऊंगी। मैं तुम्हें सूरत से बेवकूफ नजर आता हूँ? मैंने कहा। उठो, उठ जाओ यहाँ से। जो कुछ मैं कह रही हूँ वो करो, वरना ये लैंड रोवर मुझे ड्राइव करना पड़ेगी। ओह, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, तुम्हारी लाश गिद्ध खा लेंगे, उसने सफाक लहजा बनाते हुए कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर चौंक कर उसके अकब में देखने लगा। पुराना अरबा था, लेकिन इंसानी नफ्सियात भी कोई तब्दील नहीं हुई थी। उसने नागन की तरह बल खाकर दूसरी तरफ देखा और पिस्टल मेरे हाथ में आ गया। उसकी हल्क से घर्राहट सी निकली और फिर वो शायद पागल हो गई। उसने मेरे हाथ में पहुंच जाने वाले पिस्टल की परवाह किए बगैर मुझे टांग से कीक मारी। मैंने उसे कलाई पर रोक लिया, लेकिन उसने फौरन ही पलटकर दूसरी टांग घुमा दी। इस बार मैंने उसकी टांग पकड़ ली थी। लड़की फुर्तीली थी, सांप की तरह बल खा गई, लेकिन उसकी टांग मेरी गिरफ्त में ही रही। मुंह के बल गिरते हुए उसे दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ा। दूसरी कोशिश पर माफ नहीं करूंगा, मैंने सर्द लहजे में कहा और उसकी टांग छोड़ दी। वो जहां थी उसी जगह बैठ गई। मैंने पिस्टल खोलकर उसके चैम्बर खाली कर दिए और कारतूस जेब में डालकर पिस्टल एक तरफ उछाल दिया। उसके बाद मैं लैंड रोवर में दाखिल हो गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मैं उसके करीब पहुंचा और सर्द लहजे में बोला, जैकेट उतार दो। उसने एक बार निगाह उठाकर मुझे देखा, फिर जैकेट उतारने लगी। मैंने उसकी मदद की थी। फिर उसने कमीज भी पतलून से बाहर खींच ली। गोली का जख्म था जो उसकी कमर रगड़ती हुई गुजर गई थी। मैंने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया और उसके जख्म पर बैंडेज कर दी। वो साकत बैठी रही। चंद मिनट के बाद मैं अपने काम से फारिग हो गया तो उसने दोबारा जैकेट पहन ली। अब वो खामोश सी थी। अचानक हवा के दोष पर एक आवाज उभरी और वो किसी वहशत ज़दा हिरनी की तरह चौंक पड़ी। वो आ गए, बेइख्तियार उसके मुंह से निकला और फिर उसने कहा,
पिस्तौल दे सकते हो मुझे? नहीं, आओ, मैंने कहा और उसे सहारा देकर उठा लिया। मैंने उसे लैंड रोवर में सवार कराया और खुद लैंड रोवर में दाखिल होने ही वाला था कि एक फायर हुआ और गोली मेरे कान को छूती हुई गुजर गई। मैं फुर्ती से नीचे बैठ गया, लेकिन हमलावर शायद करीब आ गए थे। चट्टान के अकब से एक गर्राट उभरी और फिर किसी ने मुझ पर छलांग लगा दी। वो एक भारी भरकम और मजबूत आदमी था। एक चमक सी मेरी आंखों के सामने लहराई और मैं बरवक्त संभल गया। मैंने जमीन पर लोट लगाई और उसके वार से बच गया। हमलावर किसी आरने भैंसे की मानद था। उसने यके बाद दीगरे कई बार मुझ पर किए और मैं बचता रहा। फिर एक बार मुझे मौका मिल गया और मैंने दोनों पांव जोड़कर जमीन पर लेटे लेटे उसके पेट पर दे मारे। ताकत कुछ ज्यादा ही सर्फ हो गई और वो उछलकर पीछे जा गिरा। उसका सर एक उभरे हुए पत्थर से टकरा गया। उसके बाद वो उठ नहीं सका था। शुक्र था कि लैंड रोवर की चाबी अग्निशन में नहीं थी, वरना शायद लड़की हम दोनों को रूंधती हुई आगे बढ़ जाती। वो साकत निगाहों से इस लड़ाई का मंजर देख रही थी। मैं जल्दी से लैंड रोवर का दरवाजा खोलकर अंदर आ बैठा और फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि स्याह रंग की एक और गाड़ी नजर आई जो इसी तरफ आ रही थी और उसके साथ ही बहुत से फायर हुए, लेकिन कोई गोली लैंड रोवर तक नहीं आई थी। मैंने रफ्तार बढ़ा दी और पहाड़ के दामन की तरफ चल दिया। रास्ता बहुत खतरनाक था, जरा सी लग्जश जिंदगी छीन सकती थी, लेकिन मैं पूरी महारत के साथ गाड़ी चला रहा था। लड़की ने झटकों से बचने के लिए खिड़की को जोर से पकड़ लिया। दूसरी तरफ मुसलसल फायरिंग हो रही थी। उन्होंने हमें देख लिया है, अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लड़की आहिस्ता से बोली। इत्मीनान से बैठी रहो, अगर उन्होंने ज्यादा गड़बड़ की तो मारे जाएंगे, मैंने कहा और रफ्तार मजीद तेज कर दी। ताकुब करने वाले वाकई बेजिगर लोग थे। वो फासला ज्यादा नहीं होने दे रहे थे। मुझे खतरा था कि लैंड रोवर उनकी रेंज में ना आ जाए। दफादन लड़की हल्क फाड़ कर चीखी। जिस रास्ते पर हम सफर कर रहे थे वो अचानक ही खत्म हो गया था और अब हमारे सामने तकरीबन 60 फीट चौड़ी खाई थी जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाद फिर हमवार पथरीली सतह थी। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लैंड रोवर को रोका नहीं जा सकता था। मैंने गियर तब्दील किया और एक्सीलेटर पर पाँव का पूरा दबाव डाल दिया। गाड़ी चूंकि बुलंदी पर थी और मैंने इंतहाई कंट्रोल और चाबक दस्ती से ये खिला अबूर करने की कोशिश की थी, चुनाचे मुझे इसमें कामयाबी हासिल हो गई। ताकतवर लैंड रोवर इस खौफनाक खला को अबूर करके दूसरे हमवार किनारे पर पहुंच गई। लड़की पूरी कुव्वत से छत से टकराई थी और उसके हल्क से एक बेइख्तियार चीख निकल गई थी। गाड़ी के स्टीयरिंग पर मुझे मुकम्मल कंट्रोल हासिल था, लिहाजा खाई अबूर करते ही हम बहुत तेज रफ्तारी से खासे दूर निकल गए, यहाँ तक कि उनकी राइफलों की रेंज से भी बहुत दूर। तब मैंने लैंड रोवर की रफ्तार सुस्त की और उसे रोक दिया। खाई के दूसरे किनारे पर कुछ गाड़ियां नजर आईं, लेकिन वो लोग मेरी तरह इसको अबूर करने की हिम्मत नहीं कर सके थे। उन्होंने वहीं से गोलियां बरसाना शुरू कर दी और मैं इस खतरे के पेश नजर कि कहीं उनकी गोलियां कारआमद ना हो जाएं, लैंड रोवर को वहां से भी आगे बढ़ाते गया। लड़की के चेहरे पर किसी कदर तकलीफ के आसार नजर आ रहे थे। गालिबन शदीद झटके से उसके जख्म को नुकसान पहुंचा होगा। काफी दूर पहुंचने के बाद मैंने लैंड रोवर रोकी और उसकी तरफ देखने लगा। तुम शायद शदीद तकलीफ महसूस कर रही हो, मैंने कहा। नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, तुम आगे बढ़ते रहो। मैंने गर्दन खम करके लैंड रोवर आगे बढ़ा दी। मेरे नजदीक भी इस वक्त सफर जारी रखना ही मुनासिब था। चंद लम्हे बाद वो बोली, मुमकिन है इस खला के अलावा और कोई ऐसा रास्ता भी हो जिसे तय करके वो हम तक पहुंच सके, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाना चाहिए। ओके, मैंने जवाब दिया और फिर मुसलसल कई घंटे तक मैं लैंड रोवर ड्राइव करता रहा। लड़की ने इस दौरान मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की थी। फिर एक मुनासिब जगह पहुंचकर जहां दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे और पानी की एक छोटी सी झील भी मौजूद थी, मैंने लैंड रोवर रोक दी और इंजन बंद कर दिया। क्यों, आगे नहीं बढ़ोगे? वो बोली। मेरा ख्याल है अब हमें आराम करना चाहिए। मैंने तुम्हारे पास राइफल देखी थी, मेरा पिस्टल तो तुमने बेकार ही कर दिया। हाँ, राइफल पिछले हिस्से में मौजूद है। वो गर्दन घुमाकर देखने लगी। उन झटकों से तमाम चीजें उल्ट पुलट हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ था जो नाकाबिले बर्दाश्त होता। अचानक उसने आगे बढ़कर राइफल उठा ली। मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन तर्ज नहीं किया। वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। मैं भी कोई अफ्रीकी जानवर नहीं हूँ कि तुम्हारी इन मेहरबानियों को नजरअंदाज करके तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी कोई जवाब दिए बगैर बस मुस्कुरा दिया। लड़की लैंड रोवर से नीचे उतर गई। फिर उसने राइफल एक पत्थर पर रखी और झील के करीब पहुंचकर पानी के छींटे मुंह पर मारने लगी। उसने अपनी गर्दन और चेहरे पर काफी पानी डाला। इसी दौरान उसने जैकेट उतार दी थी। मैंने उसके जख्म की तरफ देखा, लेकिन बैंडेज इतनी कमजोर नहीं थी कि खुल जाती।
البتہ پٹی ہوئی شرٹ پر خون کی سرخی مزید ابھر آئی تھی۔ لڑکی کے بارے میں میں نے جو اندازے لگائے تھے یقیناً درست تھے، اور اس کی موجودگی سے ایلٹ کی ایک بات کی تصدیق ضرور ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایلٹ نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا وہ کسی حد تک درست تھا۔ یہ بھی تصدیق طلب معاملہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی نے میری طرف رخ کر کے آواز لگائی، اے تم نیچے نہیں اترو گے کیا؟ آؤ نیچے آ جاؤ، پانی بہت عمدہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا نیچے اتر آیا۔ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے بھی جھیل کے قریب جا کر منہ ہاتھ دھویا اور اس کے بعد لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بجری پر لیٹ گئی تھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دفعتاً میں نے چونک کر کہا، کافی تھرماس میں موجود ہے، میرا خیال ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں؟ ہاں، اتنی کہ فی الحال چند روز ہمارا کام چل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں شکار کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں لینڈ روور کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی دیر بعد ہم کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ کھاتے کھاتے دفعتاً وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ابھی تک متعارف بھی نہیں ہو سکے۔ تمہاری کارکردگی قابل تحسین ہے، تم حالات سے نمٹ سکتے ہو۔ ایسے لوگ جو ضرورت کے تحت کامیابی سے فوری عمل کریں معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے سوال کیا۔ بس ایک ایڈونچر پسند لیکن غلط آدمی نہیں ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے تم نے ابھی تک مجھ سے میرا نام تک نہیں پوچھا۔ بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ مجھے تمہارا نام معلوم ہے کیا؟ وہ چونک پڑی۔ ہاں مس ڈریگی، میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں نے پورے اعتماد سے کہا اور لڑکی کے چہرے کے عضلات میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ ایک بار وہ پھر مشتبہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اسی دوران میں اپنے ہاتھوں سے کھیلتا رہا۔ میں نے 12 انگوٹھے جوڑ کر ہاتھوں کی انگلیاں اڑتی ہوئی چیل کے انداز میں پھیلائیں، لیکن اس نے میری اس حرکت پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میرے اس مخصوص کوڈ سے نا واقف ہے اور اس کا تعلق لائن آف کروزل کے کسی محافظ گروہ سے نہیں۔ تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تم خود غور کرو اس پر۔ غور کر چکی ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس اعتماد سے تم نے مجھے مخاطب کیا ہے کہ میں حیران رہ گئی ہوں۔ کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں ہے مس ڈریگی۔ ایک شخص سے ملا تھا جس نے اپنا نام ایلٹ بتایا تھا۔ اس نے ہیروں کے ایک ذخیرے کا ذکر بھی کیا تھا مجھ سے، اور پھر رات میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ صبح ہونے سے قبل فرار ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا اور میرا اندازہ یہی ہے کہ تم ڈریگی ہو۔ ہاں میں ڈریگی ہوں۔ ایلٹ تمہیں مل چکا ہے؟ مگر وہ فرار کیوں ہو گیا؟ شاید ان لوگوں کے تعاقب سے خوف زدہ ہو کر، میں نے جواب دیا۔ یہی بات ہوگی، 100% یہی بات ہوگی۔ ویسے افسوس ہوا یہ سن کر، اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو میری اس سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ ڈریگی کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر گردن اٹھائی اور آہستہ سے بولی، مگر تمہارا نام؟ دنیا وستونیا، میں نے جواب دیا۔ خوب، مسٹر وستونیا، فرام اسپین؟ ہاں، میں نے گردن ہلائی۔ اب افریقہ میں آمد کی وجہ بھی بتا دو۔ جڑی بوٹیوں پر ریسرچ، جس میں بری طرح ناکام رہا ہوں۔ دراصل زیادہ خود اعتمادی بھی انسان کے لیے مشکلات کا باعث ہوتی ہے۔ اگر میں کسی افریقی گائیڈ کو ساتھ لے لیتا تو آسانی ہو جاتی۔ خوب، دلچسپ مشغلہ ہے جڑی بوٹیوں پر ریسرچ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین پر اگنے والی بہت سی چیزیں حیرت انگیز خصوصیات کی مالک ہوتی ہیں، لیکن یہ تو بڑا خشک موضوع ہے۔ تم جیسا شاندار آدمی کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کے 16 سال اسی کام پر صرف کیے ہیں۔ تب تو تم بہت ساری کامیابیاں حاصل کر چکے ہوگے۔ انسان ساری زندگی تجربات کرتا رہتا ہے، تب بھی اس کا علم نامکمل رہتا ہے۔ خیر ڈریگی، یہ بات تو تعارف کی حد تک محدود تھی۔ اب یہ بتاؤ تمہاری مزید کیا مدد کر سکتا ہوں میں؟ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، نہیں، اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ خاصا وقت ضائع ہو گیا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارے کام میں دخل انداز نہیں ہوں گی، اپنا کام جاری رکھو اور مجھے اس وقت تک کے لیے اپنے ساتھ رہنے دو جب تک کہ میں کوئی بہتر راستہ نہ پالوں۔ کیا تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہوگا؟ میں نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر آہستہ سے بولا، نہیں، کوئی اعتراض تو نہیں، لیکن کیا تم راستوں کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں جہاں سے تمہیں اپنی منزل کی تلاش میں دقت نہ ہو۔ اس کے بعد میں زیادہ سکون سے اپنا کام کر سکوں گا۔ شریف آدمی، 24 گھنٹے دے دو مجھے، اس کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری جان چھوڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیا ہم سفر کا آغاز کریں؟ میرا خیال ہے لینڈ روور کے اندر خاصی ابتری پھیلی ہے، پہلے اسے درست کر لو، کچھ دیر آرام بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہاں سے بائیں سمت چل پڑیں گے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے اور اس جگہ کے بارے میں کسی شبے کا شکار نہیں ہوں تو ہم بائیں سمت چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ایک چھوٹی سی افریقی بستی موجود ہے۔ بس
तुम मुझे उस बस्ती से कुछ फासले पर छोड़ देना, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। ओके, मैंने कहा। लैंड रोवर में वाकई खासी उबतरी फैल गई थी। शुक्र था कि सीटें अपनी जगह से नहीं हटी थी। कैरोसिन के डिब्बे और लैंड रोवर के साथ कसे हुए डीजल के बैरल भी डिस्टर्ब हो गए थे। मैंने उन्हें संभाल कर रखा, खाने पीने की चीजें एक सिमत हटाई और फिर बाहर निकल आया। सब कुछ ठीक है ड्रैगी, मैंने कहा। ड्रैगी लैंड रोवर के पिछले हिस्से के करीब आकर खड़ी हो गई। तो फिर आओ चलें, वो बोली। हमने बाईं सिमत सफर शुरू कर दिया। 20 मील का ये सफर सब्र और सुकून से तय कर लिया गया। रास्ते में बहुत सी बातें हुई, फिर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से ढलान नजर आते थे। इन ढलानों पर छोटे छोटे चंद झोपड़े बने हुए थे, लेकिन ढलानों से उतरने का रास्ता बहुत खतरनाक था। ऊपर से बहने वाले पानी ने जगह जगह ऐसी दरारें डाल दी थी कि लैंड रोवर को नीचे नहीं उतारा जा सकता था। लड़की एक ऐसी जगह उतरी थी जहां इंतहाई चौड़े तने वाले दरख्त खड़े हुए थे। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत शुक्रिया मिस्टर वस्तूनिया, इससे ज्यादा मैं आपको तकलीफ देना पसंद नहीं करूंगी। हाँ, अगर एलेट से मिलना चाहें तो यहाँ क्या हम कर सकते हैं। ओह, मैंने ताज्जुब से उसे देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि मिस्टर एलेट यहाँ पहुंच जाएंगे? मुकम्मल यकीन तो नहीं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं कि मैं यहाँ रुक कर इंतजार करूं। अगर तुम जख्मी ना होती तो ड्रैगी मैं वाकई आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं कम अज कम उस वक्त तक तुम्हारे पास जरूर रुकना चाहूंगा जब तक एलेट नहीं पहुंच जाता। अगर तुम चाहो तो हम लैंड रोवर यहाँ छोड़कर बस्ती की तरफ रुख करें। नहीं, मेरा अंदाजा उस बस्ती के बारे में बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन बस्ती में रहने वालों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। बल्कि मैं तो चाहूंगी कि हम यहाँ मोहतात रहें। और सच्ची बात यह है कि मुझे तुम्हारी जरूरत भी है, और तुमने मेरा पिस्टल जाया कर दिया, और जाहिर है अपनी ये राइफल तुम मुझे नहीं दे सकते। चुनाचे अगर बस्ती वालों की तरफ से मुझे कोई खतरा दरपेश हुआ तो मेरे पास अपने दिफा के लिए कोई जरिया नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने कहा। ड्रैगी का कहना दुरुस्त था। बस्ती के अफ्रीकी बाशिंदों से दूर रहना ही अच्छा था। लैंड रोवर दरख्त के चौड़े तने के अकब में इस तरह खड़ी कर दी गई कि आसानी से नजर ना आ सके, और उसके बाद हम नीचे उतर आए। ड्रैगी ने दरख्त की बुलंदियों को देखते हुए कहा, रात गुजारने के लिए इन दरख्तों की चौड़ी शाखें हमारी मुआवन हो सकती हैं। जमीन पर तो सोना मुनासिब नहीं होगा। मैंने इस मामले में उससे कोई इख्तलाफ नहीं किया। मैं सोच रहा था कि ड्रैगी का ये एतमाद बेमैनी नहीं, मुमकिन है उन्होंने इसी जगह मुलाकात का प्रोग्राम बनाया हो, लेकिन इस तरह एलेट के बयान में तदाद हो जाता था। मुझे ये दोनों किरदार दिलचस्प महसूस हुए थे, और उनके बारे में छानबीन किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था। रात हो गई। ड्रैगी मेरा सहारा लेकर दरख्त पर चढ़ गई थी। इस दरख्त पर बेशुमार ऐसी उलझी हुई शाखें मौजूद थीं जिन पर बसेरा किया जा सकता था, लेकिन लैंड रोवर की मौजूदगी में हम दूसरों की निगाहों से महफूज नहीं रह सकते थे। हमें दरख्त पर भी तलाश किया जा सकता था। मैंने इस बात का इजहार ड्रैगी से किया तो वो भी चौंक पड़ी। अरे हाँ, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। फिर क्या किया जाए? मेरा ख्याल है मैं लैंड रोवर को इन चट्टानों के अकब में खड़ा कर आता हूँ जो सामने नजर आ रही हैं। राइफल वो मैं अपने पास ही रखूंगा, मैंने जवाब दिया। मैं लैंड रोवर को उन चट्टानों की आड़ में ले गया जो यहाँ से तकरीबन कोई 250 गज के फासले पर थी। फिर मैं वापस ड्रैगी के पास पहुँच गया और मैंने भी दरख्तों की शाखों पर पनाह ली। काफी का थर्मास और दूसरी चीजें मैं अपने साथ ले आया था। काश ये लम्हात किसी तफरीही प्रोग्राम के होते, उसने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तहद्दे निगाह तारीकी फैल गई। सिर्फ ढलानों पर मौजूद बस्ती में कुछ मदम मदम रोशनियां नजर आईं जो मशालों की थी। पता नहीं इस आबादी के लोग कैसे हैं, उनके दरमियान जाना मुनासिब भी है या नहीं। मैं सोचता रहा। ड्रैगी सो गई थी। मैं राइफल संभाले जागता रहा। ज़हन में ख्यालात की भरमार हो तो फिर नींद कहाँ आती है। वैसे भी एलेट का तजर्बा ताज़ा ही था और फिर मेरी कोशिश यही थी कि मैं जागता रहूं। ड्रैगी की तरफ से दिल मुतमईन नहीं था। वो बहरहाल एलेट की साथी थी और ये दोनों किरदार इस सहरा में मुझे खासे पुरअसरार लगे थे। रात का तकरीबन 1:30 बजा। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ अफ्रीका के पुरअसरार माहौल को मुनव्वर किए हुए था कि मैंने एक साया इस दरख्त की सिमत आते देखा और राइफल पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। ज़हन फौरी तौर पर झोंपड़ों की बासियों की तरफ गया था कि शायद इनमें से कोई हो, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे एलेट का ख्याल आया। ड्रैगी की हैरत अंगेज पेशीन गोई इस कदर जल्द साबित हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। आने वाला आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गया और मैंने उसे पहचान लिया। वो एलेट ही था। फिर वो दरख्त के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया और दरख्त के तने की आड़ में बैठ गया। मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से ड्रैगी के पाँव को हिलाया
وہ ہوशिیار نیند کی عادی معلوم ہوتی تھی، فوراً ہی جاگ گئی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ڈریگی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں نے نیچے اشارہ کر دیا اور وہ شاید میرے اشارے کو سمجھ گئی۔ اس نے سرسراہٹ پیدا کیے بغیر نیچے جھانکا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے مسرت بھری آواز نکلی، ایلٹ۔ درخت کے تنے کے پاس بیٹھا ہوا آدمی اس بری طرح اچھلا کہ توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ گرا لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گیا۔ ڈریگی درخت سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایلٹ نے اسے سہارا دے کر نیچے اتار لیا تھا۔ او ڈریگی ڈارلنگ، تم یہاں پہنچ چکی ہو؟ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ تب ڈریگی نے میری طرف رخ کر کے کہا، نیچے آ جائیے مسٹر وستونیا، ایلٹ آ گیا ہے۔ کیا وستونیا؟ ایلٹ متحرانہ انداز میں بولا اور میں مسکراتا ہوا نیچے آ گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، تم یہاں، تم دونوں؟ اس نے حیران انداز میں کہا۔ ہاں مسٹر ایلٹ، آپ تو مجھے تنہا چھوڑ کر چلے آئے تھے لیکن میں نے آپ کو تلاش کر ہی لیا۔ ایلٹ جھیپے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا، پھر ڈریگی کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، تم ٹھیک تو ہو ڈارلنگ؟ ہاں، بس ایک گولی کمر کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، اس کا زخم ذرا تکلیف دیتا ہے، ڈریگی نے بتایا۔ کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہے ڈریگی؟ نہیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، معمولی زخم ہے۔ مسٹر وستونیا، تم کہاں سے ٹکرا گئے؟ یوں لگتا ہے جیسے صحرائے اعظم میں جڑی بوٹیوں کا متلاشی یہ شخص یہاں بھٹکنے والوں کے لیے ایک درویش کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسٹر وستونیا، آپ نے سوچا تو ہوگا کہ کتنا پیاسا آدمی ہے یہ ایلٹ بھی، کہ آپ کی مہربانیوں کے باوجود آپ کو دھوکہ دے کر اور آپ کا کچھ سامان لے کر فرار ہو گیا، لیکن آپ یقین کریں کہ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میرے دشمن اس علاقے میں پہنچ چکے تھے اور میری بو سونگتے پھر رہے تھے۔ میں آپ کو جگا دیتا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، انہیں صرف مجھ ہی سے پرخاش ہے، اس لیے میں نے اس موضوع پر آپ سے کوئی بات تو نہیں کی مسٹر ایلٹ، اور نہ ہی مس ڈریگی سے آپ کی شکایت کی۔ آپ نے تو مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، اگر آپ لینڈ روور لے کر بھاگتے تو میرا کیا ہوتا؟ ایلٹ ہنسنے لگا۔ آپ بہت ہی شریف آدمی ہیں مسٹر وستونیا، میں دوبارہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا لیکن یوں لگتا ہے جیسے تقدیر ہمیں دوست بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ بہرطور اگر میری حرکت سے آپ کو کوئی دلی صدمہ پہنچا ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بس بات ختم ہوگی، میں نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر وستو واقعی شاندار آدمی ہے ایلٹ، میں بھی ان کی مہربانیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، انہوں نے میری بھی مدد کی ہے، بے جگر آدمی ہے، اور جس طرح مجھے دشمنوں کے نرگے سے نکال کر یہاں لائے ہیں اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے میں بھی انسان شناس ہوں، ایلٹ نے جواب دیا۔ تو پھر اب کیا پروگرام ہے ایلٹ؟ نیند تو فرار ہو گئی، غالباً تم تھکے ہوئے ہو۔ نہیں، میں 12 بجے سے 7 بجے تک ان پہاڑوں کے درمیان سوتا رہا ہوں۔ ایلٹ نے اسی سمت اشارہ کیا جدھر میں نے لینڈ روور کھڑی کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم چاقو چوبند ہو؟ ہاں، تو پھر کیا پروگرام ہے؟ کیوں نہ ہم مسٹر وستونیا سے اجازت طلب کریں۔ مسٹر وستونیا سے جدا ہونے کو تو جی نہیں چاہتا لیکن میں مزید شرمندگی اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے مسٹر وستونیا کو جو کہانی سنائی ہے وہ ایک جھوٹی کہانی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب تک ان پر میرا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہوگا کیونکہ تم نے انہیں کوئی اور ہی کہانی سنائی ہوگی۔ میں نے تو مسٹر وستونیا کو کوئی کہانی نہیں سنائی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، ڈریگی نے کہا۔ پوچھنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میں نے کہا، جب میں نے تمہیں مسٹر ایلٹ کی ساتھی کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا اور مسٹر ایلٹ کی کہانی تو میں سن ہی چکا تھا۔ مسٹر وستونیا، در حقیقت میں نے آپ سے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا۔ آپ جو کہ ایک انتہائی شریف اور بے غرض انسان ثابت ہو چکے ہیں، اس لیے ہم آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ مجھے کہانیوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے مسٹر ایلٹ، اگر کوئی کہانی آپ کے کسی مقصد کو چھپاتی ہے تو اسے قائم ہی رہنے دیجیے۔ میں آپ کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا اور وہ بھی ایک انسان کی حیثیت سے، باقی چیزوں سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایلٹ اور ڈریگی بھی بیٹھ گئے تھے۔ تب ایلٹ نے کہا، اگر آپ حالات حاضرہ سے واقف ہیں تو صحرائے اعظم میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو لائن آف کروزل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ ہاں، یہ نام کچھ دنوں سے اخبارات کا موضوع بنا ہوا ہے، غالباً یہ عربوں کی کسی تنظیم کا نام ہے۔ بالکل درست، لائن آف کروزل عربوں کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت وہ اپنے تحفظ کا بندوبست کر رہے ہیں اور اس میں مکمل طور پر حق باجانب ہے۔ ہم دونوں ایک آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں عربوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ملازم رکھا ہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان جنگلوں اور ویرانوں میں رہ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ عربوں کی اس کاوش کے سلسلے میں کون کون سی تخریبی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔
हम उसी काम में मसरूफ थे। हमने एक ऐसे खुफिया गिरोह का पता लगा लिया है जो लाइन ऑफ क्रोदल को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म अमल है, और वो लोग जो हमारे ताकुब में सरगर्दा हैं उसी गिरोह के अफराद हैं। हमने उनमें से चंद ऐसे लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं जिनके नाम अरबों के लिए बायस दिलचस्पी हो सकते हैं। अब हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि हम ये नाम लाइन ऑफ क्रोदल के किसी आबादी तक पहुंचा सके, इसलिए वो हमें रास्ते ही में हलाक कर देना चाहते हैं। ये है असल कहानी। मैं सर्द और सपाट निगाहों से एलेट और ड्रैगी को देख रहा था, लेकिन मेरे ذہن में फुल जड़ियां सी फूट रही थी। गोया अब तक की मेहनत बेकार नहीं की गई थी। ये दोनों मेरी नज़र में मशकूक तो पहले ही थे, मगर अब मुझे यकीन हो चला था वो या तो स्टीफन ब्राकोडा के आदमी है या फिर किसी और ही हवाले से लाइन ऑफ क्रोदल के खिलाफ मसरूफ एक कार है। एलेट खामोश हुआ तो मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर एलेट, आपका जो भी मिशन हो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। इस बात को आपने तस्लीम किया है कि मैंने सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आपकी थोड़ी बहुत मदद की है। मैं चाहता हूं कि अब आप अपने काम में मसरूफ हो जाओ। हम आपको किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते मिस्टर विस्टोनिया, लेकिन ड्रैगी का जख्म मुझे तशवीश का शिकार कर रहा है। मेरी कोई बात नहीं है एलेट, मैं हर किस्म के हालात से समझौता कर लेती हूँ, ड्रैगी ने जवाब दिया। बस तो ठीक है, आराम करो ड्रैगी, कल हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। और मेरा ख्याल है मिस्टर विस्टोनिया, आप भी सुबह से पहले यहाँ से रवानगी का कोई इरादा नहीं रखते। हाँ, रात तो गुजारना ही होगी, मैंने जवाब दिया। तो फिर आप आराम से अपने लिए कोई जगह मुंतखब करके सो जाइए, हम लोग आपस में कुछ गुफ्तगू करेंगे। मैंने दरख्त की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। ड्रैगी एलेट मुझसे कुछ फासले पर जा बैठे। मैं अपनी जगह पहुंचकर लेट गया, लेकिन मैंने अपने कान उन्हीं की तरफ मरकूज रखे थे। वो लोग सरगोशियों के अंदाज में बातें कर रहे थे, लेकिन रात की सन्नाटे में उन्होंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी कि ये सरगोशियां भी वाज़े अंदाज में मेरे कानों तक पहुंच सकती हैं। एलेट कह रहा था, ड्रैगी, ये शख्स बेदर्र लगता है, अगर हम इससे कुछ काम ले लें तो क्या हर्ज है। इसकी शख्सियत दूसरों की निगाहों में मशकूक नहीं हो सकती, हम इससे क्यों ना फ़ायदा उठाएं। लेकिन इसे किस तरह रोकोगे, ड्रैगी बोली। मेरा ख्याल है सुबह को तुम शदीद बुखार में मुब्तला हो जाओ, उसके बाद इस बेवकूफ़ को मुतासर कर लेना मुश्किल नहीं होगा। हमें हर कीमत पर बंगाना पहुंच जाना चाहिए और उस सफ़र के लिए यही शख्स हमारी मदद कर सकता है। पॉइंट पर पहुंचकर हमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अब तक जितना वक्त हम इन कमबख्तों की वजह से ज़ाया कर चुके हैं उसे कवर करना ज़रूरी है। इसे काबू में रखना आसान नहीं होगा, नडर और बाहिम्मत आदमी है, कुछ और काम भी ले सकते हैं हम इससे। मेरा ख्याल है मुझे सिर्फ बुखार ही में नहीं, इसके इश्क में भी मुब्तला होना पड़ेगा, ड्रैगी ने कहा, और एलेट उसकी तायीद करने लगा। मैं मुस्कुराता रहा। इन बेवकूफ़ों को क्या मालूम था कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ। उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो गया था कि वो मेरी लाइल्मी में गायब होने की कोशिश नहीं करेंगे। लैंड रोवर की चाबी मेरे पास महफूज थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर सो ही जाऊं। सुबह को परिंदों के शोर ने जगा दिया था, हवा में खनकी रची हुई थी और इतराफ में कुहर सा छाया हुआ था। नीचे एलेट और ड्रैगी की बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। बेशाखों के दरमियान गहरी नींद सो गया था, जिस पर मुझे ताज्जुब हुआ। बहरहाल इन दोनों को देखकर इत्मीनान हुआ। फिर मैं नीचे उतर आया। हेलो मिस्टर विस्टोनिया, एलेट ने फीकी सी मुस्कुराहट से मेरा खैर मकदम किया। हेलो, मैंने कहा। ड्रैगी सारी रात तकलीफ का शिकार रही है, एलेट ने कहा। ओह खैरियत, क्या बात है, मैंने चौंकते हुए पूछा। इसके जख्म में तकलीफ बढ़ गई है। इसने मुझे बताया था कि तुमने उसे उन लोगों के चुंगल से बचाने के लिए लैंड रोवर को जंप किया था। मेरे ख्याल में उसी वजह से जख्म मुतासर हुआ है। बैंडेज तब्दील कर दी जाए तो बेहतर होगा, मैंने मशवरा दिया। अब तुम हमारे लिए और कितना परेशान होगे विस्टोनिया, रहने दो, एलेट ने उदासी से कहा। मैं ड्रैगी के पास पहुंच गया। वो एक जगह चित लेटी हुई थी और उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं तुम्हें एक बहादुर लड़की समझता हूँ ड्रैगी, मैंने कहा। हेलो विस्टोनिया, उसने खुद को संभाल लिया। मेरा ख्याल था तुम गर्म काफी तैयार कर चुकी होगी जो इस वक्त लुत्फ दे जाएगी, लेकिन तुम काफी में कैसे तैयार करती? क्यों, तुम्हें इल्म नहीं है कि लैंड रोवर में तमाम सामान मौजूद है? हाँ, लेकिन उसकी चाबी मेरे पास नहीं थी। वो मुस्कुरा दी। ओह सॉरी, मैं भूल गया। क्या तकलीफ बढ़ गई है? हाँ सॉरी ड्रैगी, मुझे एहतियात करना चाहिए थी। शर्मिंदा कर रहे हो विस्टोनिया, तुमने मेरे लिए जिंदगी की बाजी लगा दी थी। वो बड़ी लगावट से बोली। आओ, लैंड रोवर तक चल सकती हो या मैं उसे यहीं ले आऊं? नहीं, मैं चल सकती हूँ। दिन की रोशनी में ये जगह वैसे भी मखदूश है, हमें कोई भी देख सकता है। वो उठ गई। मैं और एलेट उसे सहारा देकर लैंड रोवर तक ले गए और फिर मैंने उसे लैंड रोवर के पास ही एक जगह बिठा दिया। तुम्हें काफी तैयार करना होगी। जो हुक्म सर, एलेट ने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने तमाम सामान उसके हवाले कर दिया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर ड्रैगी के पास पहुंच गया।
यहाँ नहीं, वो आहिस्ता से बोली, प्लीज उस तरफ चलो। उसने एक चट्टान की तरफ इशारा किया। एलेट हमसे बेनियाज होकर कैरोसिन स्टोव दुरुस्त करने में मसरूफ था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ड्रैगी अपने तमाम हथियार इस्तेमाल करने पर तुल गई थी। उसने चट्टान से टिक कर आंखें बंद कर ली और मुझे खुद ही उसकी जैकेट वगैरह उतारना पड़ी। उसके बाद मैंने उसके जख्म पर दवाई लगाई और नफासत से बैंडेज कर दी। ड्रैगी इसी दौरान आंखें बंद किए लेटी रही। वो अजीब अंदाज का मुजाहरा कर रही थी। फिर जब मैंने उसे जैकेट पहनाकर बटन लगाए तो उसने अपनी पहचानी मेरे सीने पर रख दी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा था। उसने आहिस्ते से कहा, एलेट सिर्फ मेरा एक साथी है, सिर्फ एक साथी। उसके बारे में किसी गलतफहमी का शिकार ना होना। मैं इन अल्फाज के मफहूम पर गौर कर रहा था कि एलेट की आवाज उभरी, काफी तैयार है। नाश्ते से फारिग होकर एलेट ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, अब क्या प्रोग्राम है वस्तूनिया? डियर एलेट, तुम्हारे मामला से तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि सिर्फ अपने काम में मसरूफ रहूँ, लेकिन इंसानियत के नाते जो जिम्मेदारियाँ इंसान पर आयद होती हैं उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत गौर किया और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि इन हालात में तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। मैं चाहता हूं कि तुम्हें किसी ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां से तुम अपने लिए सहूलतें हासिल कर लो। मैं उस वक्त तक के लिए अपने प्रोग्राम मुलतवी कर सकता हूं। तुम लोग दोहरी परेशानी का शिकार हो और मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर अपनी राह लूं। ड्रैगी जख्मी है और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी ताक में। ऐसी सूरत में तुम क्या करोगे? एलेट ने ममनूनियत से मेरे हाथ पकड़ दिए थे। मैं कुछ नहीं कहूँगा और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी इस दोस्ती की खातिर कोई जवाब भी नहीं दे सकता। कोई मंजिल है तुम्हारे ज़हन में? हाँ, अगर हम बंगाना पहुँच जाएं तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं, एलेट ने कहा। बंगाना कहाँ है? काफ़ी दूर है यहाँ से, लाइन ऑफ करोदल की एक बस्ती, वहाँ हमारे मददगार मौजूद हैं। मैं तुम्हें बंगाना पहुँचा दूंगा। बेहद शुक्रिया वस्तूनिया, एलेट ने गर्दन झुका ली। ड्रैगी सहराना आंखों से मुझे देख रही थी। मुझे निगाहें मिली तो वो खुशी से मुस्कुरा दी। उसके बाद वहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था। तैयारियां करने के बाद हमने वो जगह छोड़ दी और एलेट की तयन करदा सिमत चल पड़े। दोपहर तक रुके बगैर सफ़र जारी रहा। इसी दौरान हमें कोई खतरा नज़र नहीं आया था, लेकिन दोपहर के खाने के बाद जब हमने दोबारा सफ़र का आगाज किया तो कोई 1 घंटा चलने के बाद हमें एक नशेबी दर्रे में कुछ गाड़ियां नजर आईं और मैंने फौरन इंजन बंद कर दिया। दिन की रोशनी में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो सहराई मुहाफिज हैं। ड्रैगी और एलेट ने भी उन्हें देख लिया था। एलेट ने वो पिस्तौल निकाल लिया जो उसने चुराया था। मैंने भी राइफल संभाल ली थी। ये गालिबन वही लोग हैं, मैंने आहिस्ता से कहा। 100% मैं उन्हें पहचानता हूँ, एलेट ने फौरन जवाब दिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उन लोगों को मैं भी पहचानता था, गोया ये अभी हमारी तलाश में हैं। मैंने कहा, बेहद खतरनाक लोग हैं वस्तूनिया, हमें किसी कीमत पर इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। हम दर्रे से गुजरती गाड़ियों का जायजा लेते रहे और फिर वो एक मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल हो गई। हमें अब रुख बदल लेना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ से रास्ता काट दो। उस टीकरी के अकब से निकलकर हम एक पतले दर्रे में दाखिल हो जाएंगे। मैंने एलेट के बताए हुए रुख पर लैंड रोवर मोड़ दी। उससे मुझे एक अंदाजा हो गया था, वो ये कि ईल्ट और ड्रैगी इस इलाके के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। बहरहाल मैं मुतमईन था, जो प्रोग्राम लेकर चला था उसमें कामयाबी की उम्मीद पैदा हो गई थी। उसके बाद रास्ते में सहराई मुहाफिज नजर नहीं आए। मैंने एक सहराई बकरा शिकार किया और उसे अपने हाथों से ज़िबा किया ताकि हलाल गोश्त खाने को मिले। बाकी काम एल्ट ने किया था। रात एक जंगल में हुई थी। इलाका खौफनाक था और दरिंदों की मौजूदगी का खतरा था, इसलिए ये तय किया गया कि रात लैंड रोवर के अंदर बसर की जाए। एड ने जाड़ जंकाड़ जमा किए और गोश्त भूनने लगा। ड्रैगी मेरे साथ थी और मुसलसल बर्कबाशी कर रही थी। मैंने भी एहतियातन मुस्कुराना शुरू कर दिया था ताकि ताउन की फिजा बरकरार रहे। रात को मुझे उससे एहतियात बरतना पड़ी और ये सोचना पड़ा कि बाज़ औक़ात जरा सी नरमी भी नुकसानदेह साबित हो जाती है। दूसरे दिन सफर फिर जारी हो गया। ड्रैगी अब ठीक थी और बहुत खुश नजर आती थी। आज का सफर बहुत खुशगवार था। पता नहीं ये इलाकाई तब्दीली थी या फिर आसमान पर अबर होने की वजह से मौसम बेहतर हो गया था। बहरहाल ये दिन इतना गर्म नहीं था। शाम तक सफर जारी रहा। वो दोनों सिमतों के सिलसिले में रहनुमाई कर रहे थे। तीसरे दिन कोई 11 बजे का वक्त था जब हम पथरीले मैदान में पहुंच गए। बाईं सिमत एक बुलंद पहाड़ी पर टीला नजर आ रहा था। अब तक सफर करते हुए वो दोनों बिल्कुल मुतमईन रहे थे। ड्रैगी पर मैंने खासी असरात कायम कर लिए थे और अब उसके अंदर एक तब्दीली सी महसूस हो रही थी। उस टीले के पास चलो वस्तूनिया, एलेट ने कहा। कोई खास बात? हाँ चलो, एलेट बोला और मैंने लैंड रोवर का रुख तब्दील कर दिया। टीले से कोई 1 फरलांग पहले मैंने एक पगडंडी देखी
गाड़ियों की आमद और रफ्त के निशानात नजर आए। ये पगडंडी न जाने कहां तक जाती थी। टीले तक का सफर ज्यादा देर का साबित न हुआ और हम उसके करीब पहुंच गए। इंजन बंद कर दो, एलेट ने कहा और मैंने उसकी ख्वाहिश पर अमल किया। एलेट लैंड रोवर से उतरकर एक पत्थर पर बैठ गया। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, अगर मैं ये कहूँ वो सुनिया कि बस यही हमारी मंजिल है तो तुम्हें हैरत तो होगी। ये? मैंने हैरत का मुजाहरा किया। हाँ, अगर हम यहीं रुक जाएं तो फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम होगा? मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। कहाँ जाओगे? मुझे तो अभी तवील अरसे तक इन वीरानों में भटकना है। कौन सी मंजिल की निशानदेही करूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर तुम्हें वो लोग मिल जाएं जो हमारे दुश्मन हैं तो तुम उन्हें किस तरह मुतमईन कर सकोगे? जाहिर है उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी ना होगी। ये तुम्हारा ख्याल है। तुम्हारी लैंड रोवर उनकी निगाहों में होगी और वो ये जानते हैं कि तुमने हमारी मदद की है। तुम कहना क्या चाहते हो एलेट? मैंने कुछ मुज़दरिब अंदाज में कहा। यही कि तुम्हारी इस मोहब्बत के जवाब में हम तुमसे दुश्मनी नहीं कर सकते। एलेट ने सर्द लहजे में कहा। अब तो वाकई मुझे खौफ महसूस होने लगा है। मैंने तो उस बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने जल्दी से कहा। मैं जानता था कि एलेट क्या कहना चाहता है। ये खौफ एक हकीकत है वस्तूनिया। इस सिलसिले में मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। नहीं, मेरी रहनुमाई करो। वाकई ये बेहद परेशान कुन ख्याल है। मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं कुछ दिन और तुम्हें मेहमान रखना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी पसंदीदा जगह पहुंचाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें उन लोगों से इतनी दूर ले जाऊंगा कि वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। मैं गर्दन झुकाकर कुछ देर सोचता रहा और फिर मेरी नजरें ड्रैगी की तरफ उठ गईं। ड्रैगी ने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए गर्दन खम की। मकसद यही था कि मैं ये तजवीज़ कबूल कर लूं। मुझे क्या एतराज हो सकता है एलेट? क्या ये जगह तुम महफूज समझते हो? मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा। तुम तैयार हो? वो मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला। हाँ एलेट, मैं खुद भी तुम लोगों से मुतासिर हो गया था और इतनी जल्दी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। मैंने आहिस्ता से कहा। तो फिर यूं समझ लो मेरे दोस्त कि तुमने एक सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब कदम बढ़ा दिया है। मेरे ये अल्फाज तुम्हें अजीब जरूर लग रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत से भी जरूर आगाह कर दूंगा और तुम इस बात को तस्लीम करोगे कि जो कुछ मैंने कहा है गलत नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अपने वतन में तुम्हारी माली हैसियत क्या होगी, लेकिन जो आदमी सहराए आदम में इतनी शानदार तैयारी के साथ जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने के लिए आए, उसकी माली पोजीशन यकीनन बेहतर ही होगी। क्या ये उम्दा बात ना होगी कि तुम्हारा काम भी पूरा होता रहे और साथ ही साथ तुम्हें कुछ माली मुनाफत भी हासिल हो जाए? मेरी समझ में एक बात भी नहीं आ रही मिस्टर एलेट, और ना ही मैं ज़हन पर इस बारे में ज्यादा जोर डालना चाहता हूँ। बस मैंने तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कुछ कबूल कर लिया है और अब तुम जिस तरह चाहो मेरे बारे में फैसला करो। इसमें कोई शक नहीं कि मैं अपनी मंजिल से दूर रह गया हूँ, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन पर भटक जाने को जी चाहता है। मैंने एक बार फिर ड्रैगी की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुसर्रत की किरणें रक्सां थी। वो जानती थी कि ये इशारा उसी की जानिब है। एलेट भी मुस्कुराने लगा और फिर उसने मेरे शाने पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम नुकसान में नहीं रहे। नफा नुकसान तो जिंदगी के साथ है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत कबूल की है, मैं जानता हूँ, एलेट ने जवाब दिया और फिर मुझे लेकर उस टीले के अकबी हिस्से की जानिब चल पड़ा। अजीब सी जगह थी। टीला काफी फैलाव में था और जगह जगह उसमें इस तरह चट्टानें उभरी हुई थी जैसे उन्हें इंसानी हाथों ने तराश दिया हो, और मेरा ये अंदाजा गलत भी नहीं निकला। एक उभरे हुए पत्थर के करीब पहुंचकर एलेट ने उसमें नीचे हाथ डाला और दफादानी मैंने एक पुरशोर आवाज के साथ पत्थर की एक चौड़ी दीवार अपनी जगह से हटते हुए देखी। मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गई थी। ये हैरत मसनूई नहीं, हकीकी थी, क्योंकि इस जगह, इस वीराने में किसी ऐसे मसनूई मैकेनिज्म का तस्वर भी नहीं कर सकता था मैं। दीवार की दूसरी जानिब नीम तारीक सा माहौल था। एलेट ने मुझे इशारा किया और ड्रैगी के साथ उस हटी हुई दीवार के खिला में मैं दाखिल हो गया। पूरा टीला अंदर से खोखला था। छत उसकी बुलंदी तक चली गई थी और किसी गुंबद की सी शक्ल रखती थी। यहाँ साइडों में लकड़ी की अलमारियां लगी हुई थी। अंदर उम्दा किस्म का सामान जरूरत मौजूद था, जिसमें हल्का फुल्का फर्नीचर भी था। जमीन पर कालीन बिछा हुआ था। वीराने में इस ऐशगाह का तस्वर कोई अलिफ लैलवी ही मालूम होता था, लेकिन जो कुछ था मेरी निगाहों के सामने था। एलेट ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फटी हुई थी। मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा, ये सब जादुई कारनामा है, तुम इसे हमारा कारनामा कह सकते हो? एलेट ने कहा, लेकिन ये तो नाकाबिले यकीन बात है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है।